Hello everyone in the Ansarkari. Today we will go further into details of the devices of the parliament and the various discussions protocols we have. Yesterday we were talking about the adjournment motion, and because of the non-paucity of the time, we were not able to finish the adjournment motion. So, in brief, the adjournment motion is introduced only in the Lok Sabha. Why? Because Lok Sabha is a house where the Council of Ministers are accountable under Article 75, and it is the house where the Council of Ministers have to prove their confidence on the floor of the house, which simply means that they have to prove their majority on any particular bill, any motion, any resolution on the Lok Sabha house. And in case they are not able to do so, then it becomes the responsibility of the President of India to dissolve the Lok Sabha and to disqualify the Council of Ministers. The adjournment motion is introduced in the Lok Sabha on the matter which is very urgent as far as the political system is concerned. And we were talking yesterday that it requires 50 members support, and it provides the adjournment motion a special platform because it tries to interrupt the business of the house and aims to censure the government. Now if a question comes in anyone's mind that when we are already having the censure motion, why there was a need for the adjournment motion? Because in the censure motion, the primary intention is to cut short the debate. We were talking yesterday, there are four clauses in that. That is simple closure, compartmental closure, kangaroo closure, and guillotine closure. But in the adjournment motion, such kind of debate is not primarily concerned. Here the intention is to bring into the limelight of the parliament the failure of the executive, the misconduct of the executive, the uncompetitiveness of the executive, and that is why it should be discussed maximum for 2.30 hours and minimum for 10 to 15 minutes and ranging. And Rajya Sabha is not allowed to do so. Now, what are the conditions on which the adjournment motion can be laid out into the parliament and particularly in the Lok Sabha? Number one, public matter which is very grave, having very grave consequences. For an example, in the last couple of days, we are seeing that Delhi, Chandigarh, Ghaziabad, Gurgaon, Faridabad, all these important regions of the NCR, Delhi NCR, are made under section 144, which simply means that this provision do not allow the four persons to stand on a public place together on the basis of the law and order situation. And the farmers' agitation is going to take place in the Delhi. So that is why, as a precautionary measure, the district administration and we can say the state administration have taken these precautionary measures. But even the parliament, member of parliament hailing from these constituencies says that we want to adjourn the house, we want to adjourn the censure, we want to censure the government because despite saying that we will constitute a committee on the farm bills, despite saying that farmers' interests will be accommodated as soon as possible and there will be authoritative statement on the MSP. Still, it has been 1.5 years. There is no effective action on that from the Agriculture Ministry or from the executive itself. So it requires 50 ministers' support, 50 MP support to get passed, to get tabled, and then it becomes a matter of public importance, really urgent matter. Number two, it should not cover more than one or two matters. The adjournment motion should have one matter in detail, that this is the basis on which we want to censure the government. Number third, the parliamentary privileges should not comprise under the adjournment motion because they have a separate provisions for them. And
a matter which is already is in discussion either in parliamentary committees of the Lok Sabha or in the parliament itself, that matter should not be brought under the adjournment motion. If any matter which is currently being arbitrated and currently being adjudicated by the court, any court, session court, district court, Supreme or the High Court, that matter is also barred from entertaining under the adjournment motion category. And one last exemption is it should not raise any question that can be raised on distinct motion. किसी सेपरेट मोशन पे अगर कोई बात हो सकती है तो उसके लिए आप ये बड़ा मोशन यूज मत कीजिए, इससे पूरी स्टेबिलिटी के ऊपर खतरा है, कंट्री की, गवर्नमेंट की, इलेक्शन का एक्सपेंस बढ़ जाएगा अगर आप सेंश्योर करते हैं और गवर्नमेंट चली जाती है तो. So it will create political upheaval. That is why the adjournment motion comes with the 50 members primary support at the time it is being tabled. Now we have two important things, that is talking about the confidence of the parliament and confidence of the majority. That is confidence motion and no confidence motion. So the confidence motion, if we talk, confidence motion is demanded by the President of India. Then, any time if the President thinks that the government which is giving me aid and advice, I don't think that is competent enough. I don't think that that particular Council of Ministers is having the support in the Lok Sabha. Then any time the President of India can tell the Prime Minister headed Council of Ministers to prove your majority on the floor of the House. And if it is not able to get passed, if it is not able to get confidence of the Lok Sabha, then the President can disqualify the whole Council, including the Prime Minister. So this is confidence motion. But there is a thin line of difference between no confidence motion. What is that? Article 75, which is talking about the parliamentary form of government, that in intangible manner provides and gives the way for no confidence motion. It says that Council of Ministers, though collectively responsible to the Lok Sabha, it simply means that the ministers of the council will enjoy the office of ministries unless and until they are member of Lok Sabha and they have majority in the Lok Sabha. In case they lose the majority of the Lok Sabha, the ministries will get resolved and the ministership will get disqualified, because it will let the opposition parties to support the no confidence motion, and if it get passed, then the Council of Ministers is duly disqualified. Here also we have the 50 members primary requisite to get tabled this no confidence motion in the Lok Sabha. Now if a question comes, do we have no confidence motion in Rajya Sabha also, because ministers are coming from there only? So the answer will be no, because no confidence motion is talking about the floor of the House, is talking about the parliamentary form of government under Article 75, which is talking about the floor of the House, that is of Lok Sabha, not of Rajya Sabha. Now before we go into the cut motions, we have some other motions which are also important. Number one is motion of thanks. This motion of thanks is again related to the President of India. This motion of thanks is also discussed, tabled, and considered twice. Number one, every year when the first session of fiscal year starts, which simply means the very first budgetary speech which is announced by the President in the joint sitting, that is considered as the speech which has to be thanked to the President कि वो आए, उन्होंने तकलीफ की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट हाउस में आने की, उन्होंने चर्चा की, उन्होंने हमें संबोधित किया, तो हमें उनको थैंक्स करना चाहिए. तो उनको थैंक्स करने के लिए भी हमारे यहाँ पर मोशन. और दूसरा, जब नई लोकसभा आती है 5 साल के बाद इलेक्शन होने के बाद, here president discuss the program, the policies of the government, पिछले साल की भी जो उन्होंने काम किया और अगले साल का भी वर्णन करते हैं.
Now, when the budgetary speech given by the president, the very first speech, is finally given by him, this motion of thanks is put to vote and it must be passed by the Lok Sabha. If it is not passed, then it will also lead to the defeat of the government and new election will take place. And that is why we can also use this motion of thanks as to write that how the president, though not is a part of parliament, but is an integral part of parliament. These are some areas which prove the essentiality of the president as a part, as a core part of the parliament. Now, there are two motions, no day yet named motion. No day yet named. यानी कोई दिन नहीं दिया लेकिन आपको बोला गया कि आपका मोशन भी डिस्कस किया जाएगा. Here, the Speaker of the Lok Sabha admits that, okay, I will allow you to discuss your motion, but I'm not giving any date. I will give you date after consulting the House, after considering the business rules, and after consulting the leader of the House, that can be the Prime Minister or the person nominated by him, and on the recommendation of the Business Advisory Committee of the Lok Sabha. So this is no yet day named motion. And the last motion we have in this regard, that is dilatory motion. Dilatory motion is also to cut short the debate on any particular matter, resolution, bill, precedent. कोई भी मेंबर इसको टेबल्ड कर सकता है और अगर ये टेबल्ड होता है तो डिबेट वहीं की वहीं रुक जाती है. So it is the responsibility and we can say it is the discretion of the speaker to either accept this dilatory motion or not. So these are some famous motions we have. Now we have cut motions. So cut motions are somewhat related to debate as well as to the revenue part. Because as it is mentioned, it is a part of budgetary process. So cut motions जो है वो ड्यूरिंग दी बजटरी स्पीच के ऊपर जब डिस्कशन होता है, जब वोटिंग होती है तब यूज किया जाता है. क्यों? ताकि जो बजट के अंदर आप एक्सपेंडिचर के लिए ग्रांट्स मांग रहे हो, जो पैसा आप मांग रहे हो वो ज्यादा तो नहीं है. अगर वो ज्यादा है तो कट करो पैसा. अगर आप अपनी मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो के अंदर जितना डलना चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा मांग रहे हो तो कट कर दिया जाएगा. अगर आपको पिछले साल दिया गया था प्रूव नहीं कर पा रहे तो आपका कट कर दिया जाएगा. सो जो कट मोशंस होते हैं वो डिबेट को नहीं, कट मोशंस आपके पैसे को काटने का एक जरिया है कि गवर्नमेंट जो है पब्लिक मनी, पब्लिक जो रेवेन्यू है उसको एक्सपेंडिचर करते वक्त फाइनेंशियल और फिजिकल प्रूडेंस को ध्यान रखें. और अगर कट मोशन भी पास हो जाते हैं तो भी आपकी गवर्नमेंट सेंश्योर हो गई और सेंश्योर होते ही आप डिस्क्वालीफाई हुए, आप लोस्ट कर गए मेजोरिटी और यू विल बी डिसोल्व. आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी गई और आपकी लोकसभा भी गई, दोबारा इलेक्शन होगा. तो यहां पर दिया हुआ हमारे को टोकन कट मोशन. तो टोकन कट मोशन के अंदर आप जो है अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है या फिर मिनिस्टर उनके कहते हैं कि हमारी जो मिनिस्ट्री है और उसके अंडर जितने डिपार्टमेंट है उनको जो सालाना चलाने के लिए पैसा चाहिए वो चाहिए 10 लाख करोड़. लेकिन पार्लियामेंट्री कमिटीज ने जो वो एनुअल रिपोर्ट एमएससी की डिस्कस की उसके बिहाफ पे, कैग की जो ऑडिट हुई उसके बिहाफ पे ये पार्लियामेंट को पता लगता है कि जो इनको पैसा दिया गया उसमें से वो पैसा ढंग से खर्च नहीं हुआ है. तो ये क्या करेंगे कि भाई इनकी जो ये डिमांड है कि 1 लाख करोड़ इनको दोबारा मिलना चाहिए, उसको 1 लाख करोड़ से घटाकर आप 90 करोड़ कर दो और जितना पैसा बचा उसको 100 रुपए कन्वर्ट करके इनको दे दो. तो ये हो गया कि आपकी जो डिमांड है उसको हमने 100 रुपए में कन्वर्ट करके आपको दे दिया. जितनी जायज है उतना तो आपको मिलेगा लेकिन जितना फालतू मांग रहे हो उसको हम 100 रुपए बनाकर आपको दे रहे हैं. तो यहाँ पर आपका जो गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो आपका एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसको स्ट्रीमलाइन करने का एक तरीका है. दिस इज टोकन कट मोशन. नाउ वी हैव बिल्स. और बिल से भी पहले हम
कुछ और चीजें देख लेते हैं, बिकॉज द पार्लियामेंट चैप्टर is the one chapter where most of the questions comes in the real exam as far as the prelims of the UPSC exam is concerned. So we have 5 to 6 number of things. Number one is point of order. Point of order के नाम से हमें पता लग रहा है कि कोई ऐसा मुद्दा जिस पर यह बोला गया हो कि पार्लियामेंट जैसे चल रही है वो संवैधानिक नहीं है, वो कानूनों के हिसाब से नहीं चल रही है, ऑर्डर नहीं है सेशंस के अंदर। तो कोई भी एमपी दोनों हाउसेस के अंदर अगर उसे लगता है कि जो नॉर्मल रूल है हाउस के वो अच्छे से नहीं अपनाए जा रहे हैं, स्पीकर जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, जो पैनल है चेयरपर्सन का वो अलाउ नहीं कर रहा है डिबेट को, तो कोई भी एमपी पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठाकर रख सकता है। और पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर के अंदर अगर आप एमपी आप ऐसा कहते हैं कि भाई रूल सही नहीं अप्लाई हो रहे, तो आप बताइए कौन सा रूल कैसे अप्लाई नहीं हो रहा, किस तरीके से अप्लाई नहीं हो रहा। So this means you have to give the whole procedure to that point of order to get passed and that regulates the business of the house. आमतौर पर ये ओपोजिशन के लीडर्स उठाते हैं जिनको हम लीडर ऑफ ओपोजिशन भी कहते हैं। 1977 सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपी के तहत उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस भी दिया गया, इसके बारे में हमने पिछले सेशंस में बात की। और अगर ऐसा पास हो जाता है तो उसके बाद जिस तरीके से हाउस चल रहा है वो उसी टाइम रोक दिया जाएगा। उसके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, इंक्वायरी बैठने के बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बाद स्पीकर के पास जाएगी, स्पीकर उस चीज को सबमिशन करेंगे और उसके बाद दोबारा से हाउस रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, यानी उसकी सिटिंग रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। और यहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पास हो जाता है तो किसी को भी अलाउ नहीं है उसके ऊपर कुछ भी डिबेट या डिस्कशन करना। आपने दिया, स्पीकर ने एडमिट किया, डन। इसके बाद होता है एक मैकेनिज्म दैट इज हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन जो है वो हफ्ते में 3 ही दिन अलाउड है, यानी आधे घंटे के लिए आप चर्चा कर लीजिए किसी भी मैटर के ऊपर। ऐसा मैटर जिसके ऊपर किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, आप खड़े हुए और आपने स्पीकर के सामने बोला मैं सदन को संबोधित करना चाहूंगा, ये अर्जेंट मैटर है, ट्रांसजेंडर जो है सड़कों पर भीख मांग रहे, इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, मैंने बोल दिया, बात खत्म, हम बैठ गए। ऐसा आधे घंटे का जो मैकेनिज्म है पार्लियामेंट के अंदर वो 3 बार दिया जाता है हफ्ते के अंदर। एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है 2 घंटे का, ये 2 दिन दिया जाता है हफ्ते में आपको किसी भी एमपी को। इसके अंदर भी कह सकते हैं आप कि कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर, कोई सोशल मैटर, पब्लिक मैटर, सिविक मैटर, क्रिमिनल मैटर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हाउस के अंदर खड़े होइए और बोल दीजिए मैं हाउस को इस चीज के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। तो 2 बार दिया जाता है हफ्ते में और किसी भी मैटर के ऊपर आप कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। फिर एक होता है स्पेशल मेंशन। तो स्पेशल मेंशन इज ओनली अवेलेबल इन द राज्यसभा, नॉट अवेलेबल टू द लोकसभा। तो स्पेशल मेंशन के अंदर आप कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ, मतलब इस तरीके का मैटर जो है आप डिस्कस कर सकते हैं, आप उठा सकते हैं स्पेशल मेंशन के तहत। और इसी का जो इक्विवेलेंट लोकसभा में है उसको बोला जाता है नोटिस मेंशन। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, दैट स्पेशल मेंशन इज फॉर द स्पेशल हाउस दैट इज राज्यसभा, स्पेशलाइज्ड हाउस के तौर से आप इसको याद भी कर सकते हैं। और नोटिस मेंशन जो कि लोकसभा। अब क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है? तो द आंसर इज नो, दे आर मेंशन अंडर द रूल्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। लोकसभा के अंदर आर्टिकल 377 एंड राज्यसभा के अंदर भी वी हैव द रूल्स जिनके अंदर ये मेंशन। इसके बाद हम देखें रिजोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद बिल जब हम समझेंगे तो दैट विल बिकम इजियर फॉर अस। तो स्पेशल मेंशन, सॉरी रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन कोई ऐसा ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट होता है जो आप पार्लियामेंट के सदन पे टेबल्ड करते हैं एज एन एमपी, एज एन मिनिस्टर, एज ए कलेक्टिव एमपी। मतलब आप पूरे समूह के साथ आपने कुछ बनाया तो आपने दिया। तो किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर के ऊपर आप रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं रिजोल्यूशन की तो हम रिजोल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट स्टेट गवर्नमेंट में भी देखते हैं कि अगर जेल अथॉरिटीज
या फिर जो जेल रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं, प्रिजन रिफॉर्म्स, तो प्रिजन रिफॉर्म्स लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, और प्रिजन रिफॉर्म्स के ऊपर कोई कानून नहीं है, रिकमेंडेशन आती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। मुल्ला कमेटी के ने रिकमेंडेशन दी, जस्टिस रंगनाथन ने रिकमेंडेशन दी, तो इस तरीके की टाइमली टाइमली रिकमेंडेशन है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर ये रिकमेंडेशन अप्लाई करनी होती है तो वो रिजोल्यूशन पास करती है कि हम रिजोल्यूशन पास कर रहे हैं, इनको हम अपना रहे हैं, या फिर रिजोल्यूशन इस तरीके का भी पास कर सकते हैं कि हम इनको नहीं भी अपना रहे। So resolution is a kind of draft document which prescribes a way for the government to deal the public important matter. अब हम बात करें कि रिजोल्यूशन के ऊपर क्या क्या मैकेनिज्म है। तो जो रिजोल्यूशन कोई भी एमपी या कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जब टेबल्ड करने जा रहा है, या किसी ऑलरेडी रिजोल्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट करना चाहता है, या ऑलरेडी टेबल्ड रिजोल्यूशन को वापस लेना चाहते हैं कि हमसे तो गलती हो गई, तो उन तीनों ही मैटर्स के अंदर उन्हें एब्सेंट होना पड़ेगा हाउस से, वो टेबल्ड कराने के बाद, यानी और टेबल कराने से पहले। यानी एज एन एमपी आप बोलिए कि आई वांट टू टेक अ लीव, एंड इन दैट लीव कोर्स ऑफ टाइम यू जस्ट से दैट आई वांट टू विथड्रॉ माय रिजोल्यूशन, आई वांट टू अमेंड माय रिजोल्यूशन, एंड आई वांट टू प्रेजेंट अ रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन की तीन कैटेगरीज है, तीन तरीके के होते हैं रिजोल्यूशन। पहला होता है प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर का मतलब यहाँ कोई ये नहीं है बाहरी व्यक्ति, प्राइवेट मेंबर यानी एक नॉर्मल एमपी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, जो किसी भी पार्टी सिस्टम से हो सकता है, ऑपोजिशन से हो सकता है, मेन कोर्ट स्ट्रीम गवर्नमेंट से हो सकता है। तो स्पीकर और चेयरमैन अल्टरनेट फ्राइडेज पर इसको एंटरटेन करते हैं, और वो भी 1 बजे के बाद, आफ्टरनून सिटिंग के अंदर। तो इसको बोला जाता है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन। यानी कि अल्टरनेट फ्राइडे जो आएगा उसमें आपका प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन देखा जाएगा, पार्लियामेंट के पास इतने ऑलरेडी काम है, तो फ्राइडे हम आपको दे रहे हैं। फिर आता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। अब गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि पूरी सरकार उठ के रेजोल्यूशन दे रही है, यहाँ पर एक मिनिस्टर की बात हो रही है कि कोई भी मिनिस्टर कोई तरीके का रेजोल्यूशन ले सकते, और यहाँ पर मंडे से थर्सडे दोनों सिटिंग के अंदर वो रिजोल्यूशन लगा भी सकते हैं, वापस भी ले सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। और तीसरा आता है स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन। स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन के अंदर प्राइवेट एमपी भी, मिनिस्टर भी, या फिर समूह एमपीओ का या मिनिस्टर्स का कोई भी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन पास करवा सकता है, टेबल कर सकता है, अमेंडमेंट करवा सकता है। और स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन ही होते हैं जो बिल बनते हैं, और जो बिल ही होते हैं वो एक्ट बनते हैं। नाउ वी हैव द बिल्स। और इससे पहले एक चीज और हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जो बिल, जो रिजोल्यूशन, जो मोशन है, क्या लैंग्वेज होती है उनकी। तो उनकी लैंग्वेज जो है वो हमारे यहाँ आर्टिकल 120 के अंदर बताई गई है। आर्टिकल 120 says that constitution declares only two languages for the business transaction in the parliament. Which are they? Number one is Hindi and number two is English. Provided there is any other member who cannot entertain both the languages, now what to do? Because the member of parliament are hailing from various language, there is a diversity. Now we have a famous act, that is official language, that says that it is the responsibility of the speaker and the chairman of both the respective houses to entertain the regional languages by providing the technical assistance to the MPs who cannot entertain in Hindi or English. तो हमने देखा भी होता है हमारे जो MPs होते हैं उनके हेडफोन लगे रहते हैं, तो दे आर द लैंग्वेज कन्वर्टर। और जब कॉन्स्टिट्यूशन आया 1950 में, तो ये भी बात बोली गई थी कि हिंदी ही आगे चल करके पार्लियामेंट के अंदर मेन लैंग्वेज बनेगी। लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो आया 1963 में, इसने बोला कि आप ऐसा ना करें, आप इंग्लिश को भी साथ साथ चलने दीजिए। जब हम बात करते हैं, अगर हम कॉन्टेम्प्रेरी एग्जाम्पल की लुकआउट करें, तो वी हैव योगी आदित्यनाथ who read his oath and affirmation in Sanskrit
We have MPs from Punjab who refrain themselves from taking their oath and affirmation in English and even in Hindi. They love to speak in Punjabi. We have MPs from southern India, like we have the P. Chidambaram. We have other ministers who loves to speak in their regional language, Tamil, Dravidian, and other, so on and so forth. So this is to entertain the diversity principle in our parliament, that we have this Act 1963, which provides a mechanism for every regional languages to get equal place on the equitable platform, that is the Parliament of India. Now we have bills which get passed, then it becomes law. If it not get passed, then it becomes a failed law or a nullified law. So we have two types of bills. Number one is public bill and number two is private bill. पब्लिक बिल को ही बोला जाता है गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल. अगर हम बात करें कि कौन सा ज्यादा पास हो सकता है, तो पब्लिक बिल यानी गवर्नमेंट बिल. कौन सा ज्यादा नलीफाइड हो सकता है, तो प्राइवेट बिल, प्राइवेट मेंबर बिल. प्राइवेट मेंबर बिल का हमने एग्जाम्पल भी काफी देखे हैं. सैकड़ों की तादाद में प्राइवेट मेंबर बिल बनते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते, सपोर्ट नहीं मिल पाती है. जो प्राइवेट मेंबर बिल है, दैट इज नॉट लिमिटेड टू दी ऑपोजिशन. Even the MP who is coming from the majority party can also raise a private member bill, but the chance to get passed is less. Now why? Because when the majority party is heading the government, then politically we have a convention that all the major laws and bills are presented as in the form of government bill. But when an individual MP from the majority party raise that bill, so that is seen that is a kind of individual discretion. So individual discretion is somewhat minimized as far as the unanimous consensus and the collective wisdom is concerned of the majority party. क्योंकि अगर आप प्राइवेट मेंबर बिल लाते भी हैं गवर्नमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से आप प्राइवेट मेंबर बिल लाए भी और अगर वो पास नहीं भी हो पाया, तो बेइज्जती जो है, जो डिरोगेशन होगा, वो मेजोरिटी पार्टी का ही होगा, वो गवर्नमेंट का ही होगा. तो इसलिए बहुत मिनिमल लेवल पर इनको एंटरटेन किया जाता है. द वेरी prominent example we have, I talked a number of days before, a professor from D School of Economics, he got nominated in the Rajya Sabha coming from the BJP party. He presented a bill and tabled in the Rajya Sabha on the Uniform Civil Code, but because of various technical compulsions, that bill could not be finalized. In दो categories के अंदर ही now we have four type of laws. Number one is the ordinary bill. So ordinary bill is the very first. Number two is a money bill. Number third is a financial bill under Article 117 Clause 1 and 117 Clause 3. And the last is constitutional amendment bills. So now we will understand about the ordinary bills. So ordinary bills. Ordinary bill can be introduced in both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. ऑर्डिनरी बिल के ऊपर ही ज्वाइंट सिटिंग बैठती है अंडर आर्टिकल 108. ऑर्डिनरी बिल के ऊपर भी, ऑर्डिनरी बिल के ऊपर ही अलग अलग तरीके के वीटोज प्रेसिडेंट साहब जो है यूज करते हैं. ऑर्डिनरी बिल के लिए प्रायर सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जरूरी नहीं होता, ना तो इंट्रोडक्शन के टाइम पर ना कंसीडरेशन के टाइम पर. और ऑर्डिनरी बिल ही रिक्वायर्स करता है सिंपल मेजोरिटी दोनों हाउसेस में और प्रेसिडेंट का असेंट. और अगर ये ऑर्डिनरी बिल पास हो जाता है तो ये कानून बन जाता है. अगर हम बात करें ऑर्डिनरी बिल कैसे होता है, तो इसमें इन ब्रीफ आई वुड लाइक टू टेल दैट देयर आर नंबर ऑफ रीडिंग, देयर आर नंबर ऑफ स्टेजेस. नंबर वन इज द फर्स्ट रीडिंग. फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कि दोनों हाउसेस के अंदर अगर किसी भी हाउस ने ये बिल टेबल्ड किया, तो दोनों हाउसेस के अंदर इसकी कॉपियां बढ़ जाएंगी और यहाँ पर कॉपी सिर्फ बटेंगी. हर एमपी की टेबल पर कॉपी रखी जाएगी बिल की कि भाई इस तरीके का बिल फलाना फलाना एमपी ऑफ मेजोरिटी पार्टी
or the private member has been introduced, and please have a look on this. Now at this stage there is no discussion and debate will happen on this bill. इतना होने के बाद जो गैजेट होता है, राजपत्र जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें छापी जाती है भारत सरकार की तरफ से. एग्जाम्पल अबाउट द लेजिस्लेशन पार्ट. नंबर 2 about the executive decision part. Number 3 about the appointment procedure, about the appointment of various public important offices. For an example, we have the governor. Their name is presented the time of their appointment of the Rajpatra, that is Gazette. Supreme Court, High Court judges, all India civil service servant officers, IAS to TANICs and TANIPs. So such kind of names are presented on the Gazette, and then we have a famous saying that the all India officers cannot be terminated by the person away from or apart from the President of India. यानी जो राजपत्र है भारत का, that राजपत्र is not the letterhead of government, that is the letterhead of the President of India. जब हम बात करते हैं कंपनीज के लेटरहेड होते हैं, तो वो लेटरहेड होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, जिसपे प्रेसिडेंट की सील होती है. इससे पता लगता है कि आपको अब नियुक्त करने वाले, आपको अपॉइंटमेंट करने वाले आपके देश के प्रमुख हैं, आपके देश के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं. यानी जब हम बात करते हैं कि आईएएस आईपीएस जब ये स्कैम्स कर देते हैं, तो भी इनको इनकी जो वर्क प्रोफाइल है उनके ऊपर ज्यादा असर नहीं आता है. क्यों? क्योंकि इनका नाम राजपत्र पर लिखा होता है, जिसके लिए अगर इनको टर्मिनेट करना है तो वही एक ऑप्शन होता है टर्मिनेट करने का, और वो भी प्रेसिडेंट साहब के पास होता है. दैट इज अ वेरी highly procedural thing, and that is why we have number of cases where still the matters are under the trial. So गैजेट में इंट्रोडक्शन होता है इन बिल का, और उसके बाद जिन भी लोगों ने इस तरीके का टेबल्ड किया होता है, चाहे वो मिनिस्टर है चाहे वो एमपी है, वो लीव लेते हैं, जैसे कि हमने बात की कि ऑर्डिनरी बिल के टाइम पर ये रिजोल्यूशन ही माना जाता है. दूसरा होता है सेकंड रीडिंग. यहाँ पर डिबेट और डिस्कशन करना अलाउड होता है बिल के ऊपर, कि आप देखिए कि अंदर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर. तो इसमें आप डिस्कशन करते हैं, तो डिस्कशन करने के टाइम पर आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं. नंबर 1, आप बिल को देखिए, समझिए, और उसके ऊपर इमीडिएटली आप जो है डिसीजन लीजिए. दूसरा, आपने बिल को देखा और आपको लगा कि यार इसके अंदर तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, यानी खाली ढांचा तैयार हुआ है इस बिल का जो हमारे सामने रखा गया है, इसके अंदर जो माइन्यूट प्रोविजंस है वो अफसरों को दो, वो इसमें ऐड करेंगे. तो आप क्या करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी जिनकी हम बात करते हैं, एडहॉक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, उनको रेफर कर देते हैं कि आप डालो भाई इसके अंदर. तो या तो आप सिलेक्ट कमेटी यानी अपने हाउस की कमेटी को दे दो, दूसरा ऑप्शन ये है. और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप दोनों हाउस को टाइम बचाने के लिए दोनों हाउस की ज्वाइंट कमेटी बिठाओ और ज्वाइंट कमेटी के अंदर दे दो कि आप डिस्कस करो क्या बिल है भाई, हमें बता दीजिए. और चौथा होता है कि आप जो है प्लेबिसाइट ले लीजिए, यानी आप जो है उस बिल को पब्लिक कर दीजिए कि इस तरीके का फलाना फलाना बिल XYZ मिनिस्टर या एमपी लाए, ये पब्लिक से रिलेटेड है. तो पब्लिक का पहले व्यू दो. आप पब्लिक हमें बताइए, ऑनलाइन बता दीजिए, ईमेल के जरिए, गवर्नमेंट वेबसाइट के जरिए, रिजोल्यूशन के जरिए, जिलाधिकारी को आप पत्र दे दीजिए. इन सारी चीजों से हमें पता लग जाएगा कि जो जनसत्ता है, जो जनता है, वो क्या चाहती है. इतने तरीके हैं पहली सेकंड जो स्टेज है बिल के ऊपर. अगर हम बात करें कमेटी, तो कमेटी इनको स्क्रूटिनी करती है कि क्या ढांचा ढंग से तैयार किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको देखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर उसको अफेक्ट तो नहीं कर रहा है, माइनॉरिटीज हैं और जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसके कहीं खिलाफ तो नहीं है. और इसके बाद कंसिडरेशन स्टेज, यानी जब कमेटी है जब उनको दे देती है तो वो उसको हाउस जो उसको डिस्कस करता है, एमपी जो इस पे क्वेश्चन करते हैं, मिनिस्टर जो उसका आंसर देते हैं. और इसके बाद आती है तीसरी स्टेज जिसको बोला जाता है थर्ड रीडिंग. यहाँ पर डिस्कस पूरा हो चुका होता है, बस जो चेयरमैन और स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं भाई क्या करना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, आप वोट डालना शुरू कर दीजिए. अगर आ जाता है
तो उसके बाद वो मान लेते हैं कि हाँ इसके क्लोज पूरे डिस्कस हो चुके हैं और इसमें कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं बची। नाउ द सेकंड लास्ट स्टेज इज फोर्थ स्टेज, दैट इज सेकंड हाउस। यानी आपने पहले हाउस के अंदर तो तीसरी स्टेज में ही पास कर दिया कि कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, या फिर चाहिए तो डाल दिए, हमारी तरफ से पास, दूसरे में भेजो। तो चौथी स्टेज में बिल जो है वो पहुंचता है दूसरे हाउस में। अब ये भी वही चार तरीके की स्टेजेस करते हैं, यानी पहले ढांचे को देखेगी, फिर कमेटी को देगी, कमेटी को देने के बाद खुद स्टडी करेगी, कंपार्टमेंटलाइजेशन करेगी। अब इसके पास चार ऑप्शन होते हैं दूसरे हाउस के पास। पहला, सारा काम करने के बाद या तो इसको पास कर दें, सारा काम करने के बाद इनको लगे कि भाई हम स्पेशलाइज्ड लोग हैं और हमें यही अमेंडमेंट्स की जरूरत है, तो हम फर्स्ट हाउस को बोलते हैं आप फर्स्ट कि हमारी जो दिए गए रिकमेंडेशंस है आप उनको अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट करके डाल दीजिए बिल के अंदर। तीसरा